The Art of Living and AICTE India have signed an MOU to provide holistic education to students and faculty across India with the skills and capacity envisioned in the National Education Policy NEP 2020. The Art of Living Foundation is a volunteer based humanitarian and educational NGO. It was founded in 1981 by Gurudev Shri Shri Ravi Shankarji. The Art of Living Foundation has centers in 180 countries. Today, on behalf of our college principal, Professor Dr. J.K. Sehgal, Dean Madam Anuradha Mittal, our podcast team members and faculty members, I, Professor Sneha Sheen Sharma, Vice Principal, Postgraduate Government College, Sector 46, Chandigarh, welcomes you all to a very informative podcast with senior faculty, the Art of Living Regional Director, Government Programs and Projects, Madam Paulimi Mukherjee. Management graduate, ex-banker, she is one of the most sought trainers on soft skill upgrade and happiness quotient in the intellectual circuit. She is one of the most experienced faculty with the art of living and has been teaching the art of living workshops for youth empowerment, stress elimination, mind management, meditation, and yoga for the past 22 years. She has taken art of living workshops in more than 100 universities, institutes. She is also empowering thousands of youth to bring a societal reformation. She has taken various social projects such as drug de-addiction and rehabilitation programs, skill development and rehabilitation for prison inmates. The recent projects includes river bodies rejuvenation, natural farming, women's skill development. The pivotal insights she offers are the innate solution to challenges of modern life, its practical solutions. What are your suggestions for today's youth regarding handling of relationship? That's such an interesting question, मैम. आजकल क्या हो रहा है ना, रिलेशनशिप जो है वो एक रेल लाइन की पटरी की तरह होनी चाहिए, यू नो, तभी जीवन की गाड़ी चल सकती है. बट आजकल क्या हो रहा है, स्पेशली यूथ, अगर आप उनके ऑपोजिट सेक्स के साथ मैं अगर रिश्तों की बात करूं, तो वो क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे पे फोकस्ड हो गए हैं. यू नो, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन अ बिगर गोल एंड दैट इज वाई ऑल द एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग. आप सोचो अगर दो पटरी आपस में मिल जाए, तो आई थिंक यूथ एक ऐसा समय होता है जहाँ पे द लर्निंग इज एट इट्स पीक. इस समय पर अगर वो अपनी नॉलेज को बढ़ा ले, अगर वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा ले, तो सक्सेस तो हो ही जाएगा. और पूरी जिंदगी तो पड़ी है सब कुछ करने के लिए. इन द मीन वाइल आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल टिप फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, स्पेशली जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूथ ऑफ आवर कंट्री. इसकी गर्ल्स को मैं कुछ एक दो नसीहत देना चाहूँगी, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हमेशा कहते हैं. वो कहते हैं कि नेवर हर्ट अ मैन्स ईगो. You know, if you see a lion, he is a lion because of its amazing pride. तो उससे कभी हर्ट नहीं करना चाहिए. कहते ना कि अगर वो एडवाइस नहीं मांगे तो बिन मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए. सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए. So the person is, the relationship will work between a man and a woman. And for a woman I would say, for a man I would say that never ever hurt a woman's emotion. You know, women are born with emotions and that is why women can give birth. Emotions ना हो तो वो कभी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती. तो
they are emotional creatures. So when a woman is going through emotional time, that is the time to support the person. तो अगर ये emotions of a woman and the ego of a man is taken care of, then the relationship will work well. And anyway, in every relationship, there has to be a element of truth, of responsibility, of sacrifice. Then the relationship will be A class. Beautiful answer. It means life is a balancing act. Why maintaining balance matters? Without balance, instability आ जाती है मैम. Even if you see a cycle, Yeah. you know, life is actually like riding a bicycle. Yeah. You know, You're right. अगर left and right पैडल हम proper balance कर सके, and if you see the balance comes in the mind, है ना. कोई भी चीज का जो एक्सट्रीम है वो खराबी है. जैसे बहुत ज्यादा अगर हमको लगता है ये दवाई मेरे लिए अच्छी है, बट उसको ज्यादा ले ले तो वो विषी बन जाए. Excess of everything is bad. तो हमारे गुरुजन मुनिजन सब यही कहते हैं कि हैव अ बैलेंस, एक मॉडरेशन, एक मिडिल पाथ, एक मध्य रास्ता, एक मध्य मार्ग पे चलना है बहुत ज्यादा जरूरी है. आप देखेंगे कुछ लोग बहुत वर्क अल्कोहलिक है, अपना हेल्थ वर्कोहलिक जिसको बोलते हैं ना, दे बर्न आउट, हेल्थ खराब हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाता है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रेस्ट, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. और मेंटल रेस्ट इज मेडिटेशन. सो जब हम ध्यान करते हैं, व्हेन वी इनकॉर्पोरेट मेडिटेशन इन आवर डेली रूटीन, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पर्सनल हाइजीन का या ऑफिस आते हैं, ध्यान करते हैं, वैसे एवरी डे 15 to 20 minutes ऑफ मेडिटेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू इन दैट बैलेंस. इट्स लाइक. एक और सवाल है मेरे जहन में कि लोग रात को नाइट ड्यूटी देते हैं, जी, और रात को जो लोग नहीं सोते, कहते हैं रात सोते हैं तो शरीर जो है उसकी हीलिंग होती है. जो लोग रात को नहीं सोते या रात को अपने रील्स देखते रहते हैं उनमें, और जो वो फिर दिन में सो जाते हैं, तो इसका क्या मैम, अगर आप ऐसे लोगों को देखोगे, दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑपोजिट ऑफ नेचर. देयर इज अ रीजन व्हाई द सन राइजेस एंड द सन सेट्स, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई द नाइट हैपन. आपको पता है, मैं अगर बॉडी लेवल पे बोलूं, रात को सारा रिपेयर मेंटेनेंस क्लीनिंग होती है बॉडी का, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ब्रेन का जो भी पूरा होता है. तो हम जब नहीं सोते मैम, वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर. तो फिजिकल लेवल पे तो होता ही है मैम. सबसे बड़ा इफेक्ट हमारी ब्रेन को होती है, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी मेमोरी, दिस ऑल टेक्स अ बीटिंग. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इम्बैलेंस. जैसे हमने बोला ना कि आपने कहा कि बैलेंस नहीं मिलता, अग्रेशन, या तो बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे ऐसे लोग जो रात को नहीं सोते, या तो बहुत डिप्रेसिव हो जाएंगे मैम. तो और अगर आसपास देखो, यही हो रहा है. ओल्ड एज में जो आ रही है प्रॉब्लम, अर्ली एज में ही आ जा रही है लोगों को. एग्जैक्टली, पीपल आर एजिंग फास्टर बिकॉज दे आर नॉट स्लीपिंग. मेडिटेशन इज द सेम आंसर. अगर ध्यान करते हैं मैम, तो क्या है ना, सारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो नींद आ जाएगी. और एक और चीज, हैविंग एन अर्ली डिनर, बिकॉज क्या होता है ना, खाना खा के हम सोते हैं, सो जाते हैं, वो पचता नहीं है, पेट में रहता है, मन जागा रहता है, एसिडिटी, गैस. एंड सेकंड है मैम ब्लू लाइट. ये जो कंटिन्यूअसली हम टीवी, लैपटॉप और मोबाइल देख रहे हैं, और रील्स की एक ना मैं आपको बात बताती हूँ. आप अगर रील्स देखोगे, वो 30 सेकंड की होती है, राइट, और आधी टाइम हम देखते भी नहीं है. सो the more you are doing your scrolling, blue light, you are training your brain okay for very little attention span. इसीलिए आज देखना हमारे स्टूडेंट्स में और छोटे बच्चों में attention deficiency है, ADHD है. Why? Because you have trained your brain not to be attentive than more than 30 seconds. 40 minutes का या 45 minutes के क्लास पीरियड में वो बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ना. ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा काम किया है. 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल्स को अभी बोला है कि डोंट, बिकॉज क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है मैम.
मेरे नीस और नेफ्यू हैं वो भी मुझे कह रहे थे कि बुआ अब तो हम यूज नहीं कर सकते। सो नाइस। इट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे बैन हुआ हम नहीं कर सकते। मैम ये तो आई विल गवर्नमेंट करेगी। I will recommend our, you know, society, our government, our lawmakers. पेरेंटिंग में भी policy फर्क में। पड़ा। पेरेंटिंग में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं मैम। आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे वो आके यही कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट मेडिटेटिंग, दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। तो उनके लिए स्ट्रेस तो यही होगा ना मैम, कि मोबाइल में कुछ देख ले, सोशल मीडिया में नेटफ्लिक्स और ये जो मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सब मत करो, हाँ। बट अगेन बैलेंस मैम, बैलेंस ये ज्यादा टाइम जा रहा है फॉर इसमें। हैप्पीनेस बैलेंस इज रिक्वायर्ड। थोड़ा समय अलॉट कर दो, इट कैन नॉट बी होल डे, यू नो। आजकल तो लोग मैम ऐसे बात भी नहीं कर सकते, बात करते करते अपना मोबाइल देखते रहते हैं। हाँ बोलो। हाँ, देखते रहते हैं। इट इज वेरी जैसा ह्यूमन कनेक्शन, अनहेल्दी रिलेशनशिप का Yes. एक कारण ये भी। another reason, because Another we are not communicating with each other or to each other, we are communicating to फोकस नहीं है। हाँ, फोकस नहीं है। in a way it is dishonoring the relationship. Yes. What is ethics, human value and spirituality? बहुत सुंदर प्रश्न है मैम। सबसे पहले तो है एथिक्स। एथिक्स के बिना तो हम अपने आप को इंसान ही नहीं कहला सकते, और मूल्यबोध अगर ना हो मैम हम समाज में रहेंगे ही नहीं। लव, कंपैशन, काइंडनेस, सपोर्टिंग ईच अदर टू ग्रो, यू नो, दीज आर ह्यूमन वैल्यूज मैम। और मुझे ऐसे लग रहा है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, बट अब मुझे लग रहा है कि एक बहुत सुंदर वेव आई है। इवन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज इंक्लूडिंग दिस इन देयर। कोविड के बाद भी बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ बहुत बदला कुछ मैम, बदला है। बहुत कुछ। पीपल हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट इट। यस। और स्पिरिट मैम वही है ना कि अगर स्पिरिचुअलिटी के बिना तो हम एक जड़ बन जाएंगे। इट इज द स्पिरिट दैट रन्स। ये स्पिरिट निकल जाए तो हम कुछ भी नहीं है, जड़ हो गए हैं। And spirituality is the one that inculcates ethos, ethics, human values in a human being. So spirituality is not something outside us; it is within us. Within us. Yeah. If you see a child is the most spiritual being. Why? Yeah. It is most happy. Okay, जब सोता है तो 100% सोता है या सोती है ना? खिलखिला के हंसती है, उसका प्रेम बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। हाँ, वही प्राकृतिक स्पिरिचुअल रूप से सब। वो या इफ यू आर नेचुरल यू आर स्पिरिचुअल। हाँ, बट स्ट्रेस वेरी नाइस लाइंस। यस, प्लीज रिपीट इट। इफ यू आर नेचुरल, आप प्रकृति, अपने प्रकृति हाँ, में, अपने स्वभाव में अगर आप रक्त हो हाँ, तो आप स्पिरिचुअल हो। एंड So स्वभाव हमारा क्या है मैम? लव, लव, काइंडनेस, हैप्पीनेस, पीस। जी मैम। और मतलब नैतिकता, मानवीय मूल्य और आध्यात्मिकता जो तीनों चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। it is totally connected. Connected You है। cannot इसके be बिना आप society को ethical. imagine- Yes, हाँ, you cannot right. be ethical without being spiritual, ma'am. And spiritual is when you are connected to yourself. Yes. आप अपने स्वभाव में बहुत अवस्थित हो। जरूरी है। हाँ। Then, how artificial intelligence affects the youth and its creativity? बात तो बहुत सुंदर है मैम। बात ऐसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही उसका ये प्रश्न मतलब का आंसर छुपा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हाँ, राइट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और बोल ही रहे ये कि आर्टिफिशियल है। हाँ, AI has been created by man only, ना मैम, हाँ, which has come from the mind. yes. तो मुझे लगता है it is like It was long back in 1956. हाँ, It was coined this name, artificial intelligence. So basically to replicate the human intelligence. But मुझे ऐसे लगता है मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है। तो जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को एड्रेस करते हैं वही स्पिरिचुअलिटी है मैम। जब हम मेडिटेशन करते हैं या we are enhancing the human intelligence in all possible way. And second part is ma'am, artificial intelligence should be used as a in positive way. in a positive way. ये दो धारी तलवार के जैसे है मैम।
ये इसको यूज करके कुछ अगर हम समाज में या रिलेशनशिप में गलत कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई महत्व ही नहीं रहता है. इट कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलवेज वेलकम मैम, बट इसके पीछे जो ह्यूमन है उसको एड्रेस करना है. लालच है जो आ रहा है. यस यस. So, what is your opinion for managing the drug addiction? अगेन मैम, एडिक्शन कब होता है? अच्छा, अगर आप देखोगे मैम, व्हाट इज ड्रग? देयर आर अ फ्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल्स दैट इज मेड बाय मैन. जो भी नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इस फोरम में, बट मैं बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हूँ मैम. मैं रेगुलरली, हम लोग प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, और साथ में हम मॉड्यूल्स देते हैं. अभी तो पंजाब में इन द लास्ट 2-3 मंथ्स हमारी पूरी पंजाब में तो फैमिलीज खत्म हो गई हैं हमारी. जी मैम, और पूरे देश में मैम. हम सिर्फ पंजाब को क्यों बोले? नहीं, पंजाब में तो बहुत ज्यादा हम देखते हैं, रोज देखते हैं मैम. अब पूरे देश में फैल चुका है मैम. पंजाब में तो है ही, बट एक अच्छी बात है मैम कि आर्ट ऑफ लिविंग हैज डिवाइस्ड प्रिवेंशन मॉड्यूल्स. हमारे अभी लास्ट 2 मंथ्स में मोर देन 12,000 स्कूल चिल्ड्रन वर कवर्ड अंडर दिस मॉड्यूल मैम. हमारे टीचर्स ने जाके क्लास टू क्लास जाके ये काम किया है मैम. नंबर 1 इज प्रिवेंशन एंड सेकेंड इज हम लोग डी एडिक्शन एंड रिहैब पे भी काम करते हैं. और अगर आप, इट हेल्प्स अ लॉट. हाउ इट हेल्प्स मैम? बिकॉज क्यों लोग ड्रग्स लेते हैं? फाइनली टू बी हैप्पी. इतना स्ट्रेस है उससे दूर होते हैं. हमारी ब्रेन ऑटोमेटिकली कुछ केमिकल्स सिक्रीट करती है, जैसे डोपामिन, इट्स अ फील गुड हार्मोन. सेरोटोनिन, when you are hugging oxytocin. So love creates all this, but अभी स्ट्रेस के वजह से ये केमिकल्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल ड्रग. तो मैं इसमें एक बहुत अहम रोल जो गुरुदेव ने गिफ्ट दिया है हमको मैम, इन द फॉर्म ऑफ सुदर्शन क्रिया, जिसकी बात हमने अभी करी. सो सुदर्शन क्रिया जब हम करते हैं, इन दिस प्रोसेस ऑल द हैप्पी हार्मोन्स आर रिलीज्ड. और इसका साइंटिफिक एविडेंस विद रिसर्च हमारे पास पेपर्स हैं मैम. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से लेके, निमहांस से लेके, ऑस्लो एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पे रिसर्च किया है मैम ऑन द सुदर्शन क्रिया इफेक्ट ऑन द ह्यूमन ब्रेन. तो मैं इनवाइट करूंगी, अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है और कोई फंसा हुआ है ड्रग में, प्लीज आप विदाउट एनी वरीज आप हमें संपर्क करें, एंड मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप इससे निकल सकते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ होप. डोंट गिव अप इज व्हाट आई एम सेइंग. उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और हम चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश बने. नशा मुक्त भारत करना है मैम, साथ में मिलके सब हाथ पे हाथ भी हो और नशा मुक्त भी हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. देन वी आर अनस्टॉपेबल. भारत जैसा कौन सा देश है मैम? यहाँ सब कुछ है मैम, सब कुछ है. ये जो सोसाइटल टेंडेंसी बच्चों में है, बड़ों में भी है, इसके पीछे भी यही सब चीजें काम करनी सेम है मैम. तो क्या जैसे आप तो हमें कभी कभी मिल रहे हो, पर हम ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU कर लो, और हम पहले होंगे जो MOU करेंगे मैम. हम चाहेंगे ताकि हम अपने बच्चों को एक राइट पाथ दे सकें. इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो हमें बहुत खुशी होगी यदि आप हमारे लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें, कि हमारे बच्चों को एक नई रोशनी चाहिए, और स्पेशली फॉर यूथ. वो भटक रहा है. आपके जैसे कुछ और लोग अगर इस समाज में हो जाए, नहीं है, बहुत है जो इतना मंगल कल्याण सोच रहे हैं मैम. क्योंकि बिल्कुल मैम, आपको जान के बहुत खुशी होगी मैम कि हमारे अभी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, IIT से लेके NIT से लेके, वेरी सून हमारे AICT जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, एम्स बठिंडा, ऐसे मैम हमारे एटलीस्ट अगर भारत में कहूँ तो 1000 MOU है मैम. इसके अलावा सिर्फ 1001 वहाँ हमारा हो जाएगा. बिल्कुल मैम. बट हम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा, इनके साथ भी हमारा है.
बट चंडीगढ़ शहर में आपका सबसे पहला होगा, होना ही चाहिए मैम. एंड वी वुड लव टू पार्टनर विथ योर कॉलेज to take care of the holistic and emotional well-being of the children, ma'am. क्योंकि हमें लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन और जो प्रोफेशन हमें इतना कुछ दे रहा है उसके लिए हम कुछ करें. So nice. हमारा स्टाफ फैमिली जैसा है, बहुत अच्छा स्टाफ है. तो हम पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगे और आपको खुशी होगी कि हमारे साथ आपने एमओयू किया. और मैम हम भी पूरी ईमानदारी के साथ आपका हाथ पकड़ के बच्चों के लिए, फैकल्टीज के लिए ये जर्नी स्टार्ट करेंगे मैम. बहुत बहुत धन्यवाद शब्द छोटा है वैसे, पर आपने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताया, और जो हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट देगा. और हम आपके साथ एमओयू करके अपने इस कॉलेज को नॉर्दर्न इंडिया का बेस्ट कॉलेज बनाने वाले. तथास्तु मैम, ऐसे ही होगा. हमारा सपना. बिल्कुल मैम, ये सपना साकार होगा. थैंक यू. आपके जैसे इतने नोबल थॉट्स रखने वाले जो है, कोशिश है. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू द स्टूडेंट्स मैम. अगर होगा, आप साथ हैं तो होगा, जरूर पूरी होगा. 100% मैम, प्रॉमिस, कमिटमेंट. So thank you. And thank you for inviting Thank ma'am. you. It has been an absolute honor and pleasure to interact with you. आपके साथ बहुत खुशी हुई मेरी, और लग रहा है कि हम अपना कम से कम अपनी कॉलेज के बच्चों का और सोसाइटी का कुछ भला कर सकते हैं. कुछ नहीं, डेफिनेटली कर सकते हैं. मैम होगा ही होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं. बिल्कुल मैम. नहीं. और हम इसका एक साइंटिफिक Thank you very much, ma'am. Really, life is a balancing act, and Sudarshan Kriya is a technique of breathing and balancing mind, body, and soul. कहीं पढ़ा था, स्याही की तासीर का अंदाज तो देखिए जनाब, स्याही की तासीर का अंदाज तो देखिए जनाब, बिखरती है तो दाग बनती है, दर्द में डूबी तो शायरी, और उंगली पर लग जाए तो सरकार बनाती है. ठीक यही हाल सांसों का भी है, बीमार बनाती है, स्वस्थ बनाती है, ज्ञानी ध्यानी योगी संत बनाती है.